students, welcome back once again. And today we are going to complete the remaining part of the chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. In part 1 and part 2, you read about a person named Bipin Babu, that how he had lost his memory. Actually, he had lost his memory or not, this thing we are going to read now. Okay, but here he is made confused by a person named Parimal Ghosh, okay, whom he met at a shop where he used to buy books to read. And as we read in this story that he was not a good mixer with people, okay, so he is not ready to believe that he had ever visited where Ranchi. And this person, Parimal Ghosh, insists him that these two people, that Parimal Ghosh and Bipin Babu, met at Ranchi. Now he is not reminding, he is not remembering whether he had visited that place or not, and he is not even ready to believe that he had ever visited Ranchi. But some situations and some things makes him, force him to convince himself that whether he had visited Ranchi or not. मतलब वो कुछ चीज़ें जो सिचुएशन उसके पास क्रिएट होती है उसको मजबूर कर देती है सोचने के लिए कि उसने कभी रांची विज़िट किया, वो जगह रांची कभी गए, लेकिन उसको वो याद नहीं है और इससे वो बहुत नर्वस हो जाते हैं. When he goes to office, he could not concentrate on his work, okay, and he's constantly thinking about the thing, uh, about the thing which you have read in part 1 and part 2, what had happened to him, what were the situations told to him about Ranchi and his visiting at that place. In part 2 we also read about how he went to office and he was not concentrating on his work. So what he decided and what he is going to do related to this loss of memory. He thinks that he had lost his memory. So what he decides? He decides to go to visit a doctor and to face whatever is happening to him is really a fact or not. यानी उसकी जो मेमोरी है, लॉस ऑफ मेमोरी, कि वाकई में उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है या ऐसा कुछ हुआ उसके साथ इंसिडेंट कि वो जो उसने रांची प्लेस विज़िट की वो उसको याद नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? सो इज़ नॉट रेडी टू बिलीव दिस थिंग. सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू रीड हियर इन पार्ट 2 and part 3 and part 4. So let's start with this part. Okay, part 3. After a lunchtime, Bipin Babu, okay, realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. Firm means the company where he had been working. यानी कि उस दिन उसको ऐसा एहसास हो रहा था बिपिन बाबू को कि वो अपने काम में कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे. ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज वर्क. और ऐसा उनके 25 इयर्स के करियर में कभी भी नहीं हुआ था. उन्होंने हमेशा अपना काम बहुत दिल लगाकर बिना थकान के टायरलेसली काम किया. ही हैड अ रेपुटेशन मीन्स अच्छा नाम, अच्छी इमेज होना. तो ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. Here tireless यानी बिना थके हुए, conscientious यानी केयरफुली अपने काम को पूरे डेडिकेशन और ध्यान से करना. But today his head was in a whirl. Whirl means whirl means to spin. तो उनका सर एक्चुअली चकरा रहा था ये सोच के, जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा उसके बारे में सोच के कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ का इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे भूल सकता हूँ. सो ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज वर्क. बैक होम एट 2:30, बिपिन बापू ले डाउन इन अ बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. गैदर हिज विट्स टुगेदर मतलब ज़ोर लगाकर, दिमाग पर ज़ोर लगाकर सोचना. ठीक है, वो सोचने की कोशिश कर रहे थे कि वो रांची कब गए, क्यों गए, किसके साथ गए. एंड ही वॉज नॉट इवन रिमेंबरिंग अ सिंगल इंसिडेंट, अ सिंगल मोमेंट ऑफ दिस प्लेस. सो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर हिम. ही न्यू डेट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन हिज हेड, but he did not know of a single instant of someone remembering everything except one particular incident.
मतलब ये कि हमारे सिर में या तो चोट लगती है तब हम किसी इंसिडेंट को भूल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उनका मानना था कि उनके साथ ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं हुआ था या उनके सिर पे ऐसी कोई चोट नहीं आई थी जिससे वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भूल सकें. Fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. उन्होंने हमेशा रांची जाने का सोचा था, पर ये कभी नहीं सोचा था कि उन्होंने वो जगह विजिट की और उसके बारे में वो भूल गए. तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बिलीव दिस थिंग. At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu sir, say it's very important." ओके, तो जब वो इस बारे में सोच ही रहे थे बेड पर सोते सोते, तभी उनका सर्वेंट आके बोलता है कि चुन्नी बाबू उनसे मिलना चाहते हैं. ठीक है. नाउ बिपिन बाबू न्यू डेट चुन्नी हैड कम फॉर वॉट. चुन्नी हैड कम फॉर, उनको पता था कि चुन्नी उनके पास क्यों आया है, चुन्नी लाल. ही हैड बीन एट स्कूल विद हिम. ये दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और एक समय ऐसा आया था जब चुन्नी लाल का समय बहुत ख़राब था. रफ टाइम. चुन्नी लाल हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम एंड ही हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. और वो अक्सर बिपिन बाबू से जॉब से रिलेटेड मिलने आते थे कि वो शायद उसको जॉब दिलाने में कुछ हेल्प कर सके. ही हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब एंड बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. और बिपिन बाबू को पता था कि उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो उनको चुन्नी लाल को जॉब पर लगा सके, तो वो हमेशा उसको अवॉइड करते थे. बट चुन्नी कैप टर्निंग आप लाइक अ बैड पेनी. आप लाइक अ बैड पेनी मतलब कि बिना बुलाए ज़बरदस्ती किसी के घर जाना, जहाँ पर उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वेलकम नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हम बार बार वहाँ पर जाते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज बैड पेनी. तो फिर भी चुन्नी को हर बार वो अवॉइड करता था, लेकिन वो चुन्नीलाल फिर भी बिपिन बाबू के पास बार बार जाता था जॉब ले मांगने. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स. तो उन्होंने सर्वेंट के थ्रू मैसेज भिजवा दिया कि अब वो चुन्नी बाबू से नहीं मिल सकते और ना ही अभी बल्कि कुछ हफ्तों तक. ही कुड नॉट मीट हिम. एज सून एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ द रूम, जैसे ही वो रूम के बाहर निकला सर्वेंट, बिपिन बाबू के माइंड में आया कि शायद चुन्नी लाल उसकी कुछ हेल्प कर सके ये याद दिलाने में कि क्या कभी वो रांची गया था, और उसको पूछने में भी कोई नुकसान नहीं था. देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम. ओके. बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स इनटू द लिविंग रूम. चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव. इसके पहले कि चुन्नी घर के बाहर कदम रखे यानी घर से निकल ले, इससे पहले ही बिपिन बाबू रश मतलब दौड़ते हुए सीढ़ियों पर उसको आवाज़ देते हैं चुन्नी को. ही टर्न डाउन होपफुली. ही टर्न डाउन होपफुली हु चुन्नी लाल. उसको लगा ज़रूर मेरा काम हो जाएगा, इसलिए शायद बिपिन बाबू ने मुझे वापस आवाज़ दी. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. तो कहते हैं मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव अ गुड मेमोरी. तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है. एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और तुम मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से कांटेक्ट में हो, तो शायद तुम जानते हो कि डिड आई गो टू रांची इन 58, कि क्या मैं कभी रांची 58 में गया था क्या. तो चुन्नी कहता है इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59. तो वो कहता है याद नहीं मुझे ध्यान से, लेकिन शायद वो 58 या फिर 59 था. तो इससे वो और कंफ्यूज हो जाता है. इट मीन्स इट बिकम्स क्लियर टू हिम डेट ही हैड एवर विजिटेड रांची. तो वो उससे फिर से पूछता है यू आर श्योर डिड आई गो टू रांची. तो उसको पूछता है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि मैं रांची गया था. चुन्नीस लुक ऑफ अमेजमेंट. अमेजमेंट मीन्स सरप्राइजली. तो वो इतना सरप्राइजिंगली उसको देखता है. डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल. तो चुन्नीलाल उसको और कन्फ्यूजन में डाल देता है कि तुमको इतना भी नहीं पता, इसमें कोई शक है कि तुम रांची नहीं गए थे या गए थे. डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली. कि फिर वो उसे और कन्फर्म करता है. बिपिन बाबू कन्फर्म करते हैं कि वाकई में मैं रांची गया था.
चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा पे बैठ जाता है चुन्नी। फिक्स बिपिन बाबू विद लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। चुन्नी लाल बिपिन बाबू को ध्यान से नज़रें मिलाकर सोफ़ा पे बैठता है और देखता है और कहता है, क्या तुमने कोई दवाई ली है, कुछ नशा किया है? हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मुझे पता है तुम ऐसा कोई ड्रग्स लेते नहीं हो या नशा नहीं करते हो, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई होश ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। आई नो ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। एंड यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तो तुम रांची की ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकते हो? नाउ बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर। अब वो जिस तरह से चुन्नी उसको घूर के देखते हुए बात कर रहा था, तो वो अपनी नज़रें मुड़ा लेते हैं। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? तो चुन्नीलाल पूछता है, तुमको ये तो पता है कि मेरी लास्ट जॉब मैं क्या करता था? तो कहता, हाँ ऑफकोर्स, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। देन यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? तो वो सारी सिचुएशन और कंडीशंस ऐसे बताता है उसको, सारी सिचुएशन दैट तुमको जब ये पता है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में था, तो मैंने तुम्हारे लिए रेलवे बुकिंग की थी रांची के लिए ही, और मैं तुमको स्टेशन पे छोड़ने भी आया था, और तुम्हारे कंपार्टमेंट में फ़ैन वर्क नहीं कर रहा था, तो इलेक्ट्रिशियन के थ्रू मैंने उसको ठीक करवाया था। तो फिर तुम ये चीज़ें सारी कैसे भूल गए? मुझे लगता है यू डोंट लुक टू वेल, यानी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो बिपिन बाबू एक आह भरते हैं, साइड एंड शोक हिज हेड, और अपनी गर्दन सिर को हिला देते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड। शायद मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा, और इसी वजह से यही रीज़न रहा होगा कि मैं शायद कुछ चीज़ें भूलता जा रहा हूँ और अपनी रांची की ट्रिप भी भूल गया। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। तो मुझे किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट जॉब। बिपिन बाबू की कंडीशन देखकर चुन्नीलाल ने सोचा कि अब मेरे जॉब के बारे में बिपिन बाबू से बात करना सही नहीं रहेगा। तो व्हाट ही डिड, he left away without talking about his job. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. तो बिपिन बाबू डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, किसको? परेश चंदा। एंड परेश चंदा वॉज अ फिजिशियन, अ यंग फिजिशियन, एंड व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज़ कंडीशन, जब उन्होंने बिपिन बाबू की जो सिम्टम्स के बारे में सुना कि उनको अपनी रांची की ट्रिप यानी अपनी लाइफ के एक बड़ा सा हिस्सा, एक बड़ा सा इंसिडेंट वो भूल गए हैं, तो ही कुड नॉट बिलीव, उनको विश्वास नहीं हुआ। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तो बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा को कहते हैं कि तुम ही मुझे इस हॉरिबल यानी इस टेरिबल बीमारी को, मेरी बीमारी को दूर कर सकते हो। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। तुमको पता भी नहीं है कि ये मेरे काम पर कितना अफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से। मैं दिन भर इसी में यही सोचता रहता हूँ। नाउ डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। यू नो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। यानी उनका ये कहना है डॉक्टर चंदा का कि उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसा कोई केस नहीं देखा इन माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कि कोई इंसान अपनी लाइफ का इतना बड़ा इंसिडेंट भूल सकता है। तो ऐसा केस उनकी लाइफ में, उनकी डॉक्टर की लाइफ में कभी आया नहीं। तो उनको सजेस्ट करते हैं कि मैं तुमको एक सजेशन देता हूँ, एंड आई होप इट विल डू नो हार्म, और इससे तुमको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट हैव बीन रांची। डॉक्टर चंदा बिपिन बाबू को कहते हैं कि तुम रांची गए होगे, ज़रूर गए होंगे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से
बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड मतलब वो हिस्सा, वो टाइम जब वो रांची गए, हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। किसी रीज़न की वजह से वो बात तुम भूल गए हो, क्या तुम कभी रांची गए थे। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू रांची वंस अगेन। तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि तुम रांची एक बार वापस जाओ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम उस जगह को विज़िट करते हैं तो वापस हमारी वो चीज़ें याद आने लगती है। तो हो सकता है कि द साइट ऑफ द प्लेस, उस जगह को देखकर तुमको अपनी याददाश्त यानी उस जगह के बारे में जो भी तुम्हारी यादें हैं वापस याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। यू कुड गो टू रांची। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। मतलब ट्रैंक्विलाइजर इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसन, ठीक है, जो मेमोरी के लिए दी जाती है, और एक टॉनिक उन्होंने लिख के दी। एंड स्लीपिंग इज़ एसेंशियल, और तुमको अच्छे से नींद लेनी होगी, ठीक है। तो हो सकता है उससे तुमको कुछ रिलैक्स फील हो जाए। तो बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर नेक्स्ट मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। फिर उनको सुबह उठने के बाद जब वो दवाई लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है। एंड ही डिसाइड्स टू गो टू रांची। सो व्हाट ही डिड आफ्टर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन लगाया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे काम अपना हैंडल कर लेंगे वो। एंड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और फिर उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्टी से, बहुत ही मुश्किल से उनको फर्स्ट क्लास टिकट मिली उसी दिन शाम की, ठीक है, फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। एंड सो ही डिसाइड्स टू गो टू रांची दैट नाइट। ओके।